friends, welcome back to my channel. Today I will talk about new criticism. There will be a playlist named New Criticism. This is for UGC Net Paper 2 English. Under this not new criticism actually, a playlist named Criticism. Under this, you will get all the topics of criticism, okay, and theory. So now, this new criticism. What is new criticism? This is an introductory. New criticism के जो critics थे who followed this new criticism, they were called as new critics. It actually started in America. America में start होता है, and then it was followed by Cambridge and London के जितने भी scholars थे, they added up, and it actually started in 1920, and you can understand this the modern period and the modern period actually began यहाँ पर, ठीक है. तो 1900 में तो ये स्टार्ट हो जाता है उस टाइम पे. दैट इज़ वाई दीज all these writers, T.S. Eliot, Matthew Arnold, and all these guys, they Victorian से modern age जो writers है, they was only talking about objectification and हाँ, objectification, like कोई भी text को आप objectively analyze कीजिए. objectively analyze का मतलब है you should text is devoid of any personality, any biasness of the writer के खुद के opinion, खुद के views, खुद का जो खुद का own taste है, वो सारी चीज़ें mind को blur नहीं करनी चाहिए when you are analyzing our text. न्यू क्रिटिसिज्म एक्चुअली सेज दैट टेक्स्ट कोई भी टेक्स्ट को अगर आप पढ़ते हैं तो उस टेक्स्ट का मीनिंग जो होता है इट इज़ देयर इनसाइड the text is autotelic. That is why new critics they say that every text is autotelic text. What is actually autotelic? Auto is automatic, टेलिक इज़ दैट टेल्स इटसेल्फ. दैट इज़ कोई भी टेक्स्ट यानी कि कोई भी टेक्स्ट ऑटोमेटिक होती है. कोई भी टेक्स्ट अपना मीनिंग अपने आप खुद बताती है. मीनिंग टेक्स्ट के अंदर होता है. जो भी वर्ड्स लिखा हुआ है, जो भी सेंटेंसेस है, जो भी वहाँ पे फिगरेटिव लैंग्वेज, फिगरेटिव वर्ड्स यूज़ हुई है, फिगरेटिव डिवाइसेस यूज़ हुई, सॉरी फिगरेटिव वर्ड्स नहीं, फिगरेटिव डिवाइसेस. ओके, फिगरेटिव डिवाइसेस यानी कि जो हमें होता है मेटाफोर, सिमिली एंड एलिटरेशन, जितने भी फिगरेटिव डिवाइसेस होते हैं, ओके, दैट इज़ एक्चुअली द कॉनोटेटिव मीनिंग होता है, विच इज़ द हिडन कॉन्टेक्स्ट जो होता है. ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये एक टेक्स्ट में होती है, विच इज़ देयर इनसाइड द टेक्स्ट, विच इज़ हिडन विद इन अ टेक्स्ट. सो ये सारी चीज़ें एक जो रीडर होता है, रीडर को खुद ब्रिंग आउट करनी पड़ती है एंड इंटरप्रेट करनी पड़ती है. दैट इज़ इट इज़ द रीडर्स हु एक्चुअली गिव द मीनिंग टू द टेक्स्ट. ठीक है, रीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या इंटरप्रेट कर रहा है, कोई टेक्स्ट का मीनिंग क्या वो इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्या मीनिंग दे रहे हैं. दैट इज़ वाई इसमें एक पर्टिकुलर टेक्स्ट है, डिफरेंट रीडर्स दे आर रीडिंग डिफरेंट. इस टेक्स्ट को अगर हम मल्टीपल टाइम्स भी पढ़ेंगे तो इट्स लाइक मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस आई it is coming. Okay, and if multiple readers are reading and then multiple interpretations हो जाएंगे, different interpretations हो जाएंगे, different meaning हो जाएगा. Okay, because text जो होता है, text is devoid or it is not joined with it is not linked with any historical background, any author's no historical background, no author's background से text link नहीं होना चाहिए. Text is separated from any cultural, any historical, any social, any political, any authors, any influence ऑफ द ऑथर्स बैकग्राउंड. ये सारी चीज़ों से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो होती है, ये सारी चीज़ों से टेक्स्ट इज़ नॉट बाउंड. एक्चुअली टेक्स्ट इज़ नॉट बाउंड, राइट. टेक्स्ट इज़ डिवॉइड और सेपरेटेड फ्रॉम ऑल दिस स्टफ्स. टेक्स्ट इज टेक्स्ट एक काइंड ऑफ टेक्स्ट होता है. Text is actually whatever is there in front of you, whatever is there written on the page. If you are able to understand the words on the page, able to understand if you are able to understand the जो metaphors, the similes and whatever it is there, अगर आप words को समझते हो, उस figurative language को समझते हो, जो figurative devices जो वहाँ पर लिखी हुई जैसे यूज़ हुई है, उसके structure को आप समझ पाते हो, क्या बताना चाह रहा है उस चीज़ को अगर आप समझ पाते हो, only then you can understand, you can interpret the text correctly. Text is not related or not bound to any author's intention, author's का intention,
ऑथर्स बायोग्राफी, ऑथर का इन्फ्लुएंसेस, एनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, like the historical background when the author was, when the text has been written, when the author was writing the text, author के intention क्या थे, एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जब ये टेक्स्ट लिखा गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें कल्चरल, सोसाइटल, ये सारे इन्फ्लुएंसेस की ज़रूरत नहीं है टेक्स्ट को रिफ़र करने के लिए। कि आपको पहले क्या करते हैं हम लोग, when we are actually referring the text, what we used to do, we used to directly refer to the timeline of the text when this text has been written and who has written the text, that is we want to know the writer, and then writer का influence क्या था, writer का background का क्या था, writer के experiences क्या थे, हर चीज़ ये हम सोचते हैं कि ओके वी शुड ब्रिंग आउट, ओनली देन वी कैन अंडरस्टैंड कि ओके ये टेक्स्ट ऐसा है, यानी कि ये टेक्स्ट ये सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हुआ है। राइटर की बायोग्राफी, राइटर ने लिखा तो ऐसा क्यों लिखा, राइटर के दिमाग में क्या चल रहा था, राइटर क्या क्या चीज़ों से इन्फ्लुएंस हुआ है, क्योंकि तब जाके उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें जानने का बहुत मन करता है, ओके। तो ये होता है, बट ये सारी चीज़ों से जो है वो टेक्स्ट चिपका हुआ नहीं होता है। टेक्स्ट इज़ एक्चुअली डिपार्टेड फ्रॉम ऑल दिस स्टफ्स, ठीक है। बाहरी चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। टेक्स्ट जो है वो है, टेक्स्ट जो यानी कि जो फ्रेजेस है, जो सेंटेंसेस है, जो लैंग्वेज है, अगर आपको समझ में आता है, अगर आप ये सारे लिटरेरी फिगरेटिव डिवाइसेस, लिटरेरी नहीं एक्चुअली फिगरेटिव डिवाइसेस को, मेटाफॉर, सिमिली, एलिटरेशन, ये सारी चीज़ों को अगर आप समझ पाते हो, डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड, अगर इस वर्ड्स के बीच में कनेक्शन समझ पाते हो, इसका डीपर मीनिंग समझ पाते हो, तो ओके फाइन, यू कैन इंटरप्रेट द टेक्स्ट एज अ वे यू वांट। देयर इज नो इन्फ्लुएंसेस। टेक्स्ट का कोई प्री डिटरमाइंड, प्री फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो न्यू क्रिटिसिज्म के पहले ओल्ड क्रिटिसिज्म था। ओल्ड क्रिटिसिज्म यानी कि 1929 के पहले देयर वाज ओल्ड क्रिटिसिज्म, जहाँ पे स्कॉलर्स क्या करते थे, कोई भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को पहले देयर यूज्ड टू रिफर टू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द टेक्स्ट, जब उस टेक्स्ट वो टेक्स्ट कब लिखा गया, ओके, टेक्स्ट का टाइमलाइन वो पता करते थे, ठीक है। टेक्स्ट का जो यानी कि कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट है उसका कौन ऑथर है, कौन सा किस राइटर ने उस टेक्स्ट को लिखा, कौन उस ऑथर का लाइफ टाइम, ऑथर का बायोग्राफी, ऑथर के इन्फ्लुएंसेस, सारी चीज़ें उनको बहुत मन था कि ठीक है ये सारी चीज़ें अगर हम लोग पहले जानेंगे, ओनली देन वी कैन अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। इट्स जस्ट लाइक स्ट्रक्चरलिज्म, इफ़ यू अंडरस्टैंड द बिगर स्ट्रक्चर ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड द स्मॉलर पार्ट्स ऑफ इट, ओके। इट्स लाइक कि अगर आपने बिगर चंक पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा आपने डीपर स्टडी की हुई है, तो ठीक है, अगर कोई भी आउटडेटेड या फिर कोई अगर न्यूअर टॉपिक आ भी जाता है तो आप उसे इजीली हैंडल कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि आपको आपने ज़्यादा पढ़ा हुआ है तो आपको कम वाला आ जाएगा, ओके। इट्स जस्ट लाइक स्ट्रक्चरलिज्म दे आर सेइंग कि अगर आपको बड़ा, इट इज़ नॉट एक्चुअली स्ट्रक्चरलिज्म बट दे आर सेइंग लाइक दैट, ओके। पहले ओल्ड क्रिटिसिज्म की मैं बात कर रही हूँ कि पहले ये है कि अगर आपको बड़ा वाला आएगा आपको छोटा वाला आ जाएगा, ठीक है। बट न्यू क्रिटिक्स इज दैट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। टेक्स्ट इज नॉट इन, आई एम सो सॉरी फॉर द आउटर डिस्टर्बेंसेस। टेक्स्ट लिंक नहीं है ऑथर की बायोग्राफी से, हिस्टोरिकल सारी चीज़ों से, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस है, नो हिस्टोरिकल एस्टिमेट। अगर ये न्यू क्रिटिक्स दे एक्चुअली से दैट, अगर हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है, मिल्टन अ वेरी ग्रेट राइटर, पैराडाइज लॉस्ट और ग्रेट राइटर का ग्रेट वर्क, एपिक वर्क मैंने लिया है, सपोज पैराडाइज लॉस्ट, तो यू नो कि मिल्टन इज अ वेरी ग्रेट राइटर एंड सपोज दिस वर्क एंड ऑल्सो दिस वर्क इज अ वेरी ग्रेट वर्क इन द फील्ड इन द डोमेन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, राइट। इसमें क्या हो जाएगा, पैराडाइज लॉस्ट को अगर मैं इसका एनालाइज करने चली, इसका इंटरप्रिटेशन करने चली, इसको क्रिटिकली एनालाइज करने चली, तो मेरा तो हालत ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में ऑलरेडी ये है कि मिल्टन, अरे मैं मिल्टन को कैसे, जॉन मिल्टन अ ग्रेट राइटर, लाइक काइंड ऑफ एक वैसे लेजेंडरी राइटर है, तो उनका एक पर्टिकुलर पोजीशन बना हुआ है ना इंग्लिश लिटरेचर में, इन द फील्ड ऑफ, उन्होंने पोजीशन बनाई अपनी, तो वैसे राइटर को मैं कैसे करके एनालाइज कर सकती हूँ, और स्पेशली उनके वर्क को मैं कैसे एनालाइज कर सकती हूँ। तो इट्स लाइक देयर इज़ अ हिस्टोरिकल एस्टिमेट विच इज़ अटैच टू दिस राइटर। हिस्टोरिकल एस्टिमेट ये कहता है कि ऑलरेडी ये जो ग्रेट राइटर्स है, शेक्सपियर, मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, क्रिस्टोफर मार्लो, मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. एलियट, जॉर्ज एलियट, ये सारे प्रोमिनेंट राइटर्स हैं इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फिर वहाँ पर आ गया विलियम ब्लेक है, फिर वर्ड्सवर्थ है, कोलरिज है, ये सारे लेजेंडरी राइटर्स है, ग्रेट राइटर्स हैं, इनकी वजह से ही ये फ्लरिश करता है इंग्लिश लिटरेचर। तो ये सारे ग्रेट राइटर्स को अगर मैं अभी एक एक करके अगर मैं चुनूँ और मैं इनके वर्क्स को एनालाइज करने चलूँ, तो मेरी तो मतलब
हो जाएगी, मतलब मेरी बैंड ही बज जाएगी अगर मैं इनकी जो है वर्क्स को एनालाइज करने चलूँ। मैं एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ा पाऊँगी, और इनके वर्क्स को एनालाइज करना तो दूर की बात है, क्योंकि ये राइटर्स एक हायर पोजीशन पे है, एक ग्रेट पोजीशन, एक आइडियलिस्टिक पोजीशन पे है, जस्ट लाइक गॉड। वैसे वाले